नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। मेरा नाम है अनमोल राज बख्शी। आज इस वीडियो में मैं इंडियन पेपर एंड पैकेजिंग मशीनरी एसोसिएशन के साथ हुए मेरे वेबिनार को आपके समक्ष शेयर करूंगा, जिसका टॉपिक है रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट। इस वेबिनार में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि डिलेड पेमेंट्स क्या होती हैं, इसको होने के मेन रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द मोड्स टू रिकवर योर डिलेड पेमेंट एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस बाय विच यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट। ये वेबिनार थोड़ा लंबा है, अगर आप इसके साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको डिलेड पेमेंट्स का इशू शायद फिर कभी ना फेस करना पड़े। लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। First of all, a very good evening to all respected ICPMA members. I, Priyanka Mathur, Executive Secretary to President ICPMA, take this opportunity to welcome you all to today's webinar organized by Indian Paper Corrugated and Packaging Machinery Manufacturers Association ICPMA. With warm regards, I welcome as our honored guest, Advocate Anmol Bakshi ji, who would be the speaker for today's webinar session. Anmol ji, you are most welcome to today's webinar event organized by ICPMA. I would like to share a brief intro of Anmol ji from Bakshi and Associates, who is an expert speaker on legal solutions for MSMEs. We're excited to have Anmol Bakshi ji, a renowned legal expert from Bakshi and Associates, as our expert speaker for the upcoming webinar. Bakshi and Associates is a well-established law firm with a strong reputation in providing comprehensive legal services to micro, small, and medium enterprises. Anmol Bakshi ji, representing Bakshi and Associates, brings extensive experience and in-depth knowledge of MSME-related legal challenges. With their team of experienced lawyers, Bakshi and Associates offers tailored and cost-effective legal solutions to address the unique needs of MSMEs. So please join us for an insightful session as Anmol Bakshi ji discusses the legal steps and possible solutions for MSMEs dealing with delayed payments. Don't miss this opportunity to gain valuable insights from one of the leading experts in the field, supported by the esteemed reputation of Bakshi and Associates. Our members will reap the benefits and will have a good amount of takeaways from this webinar, as delayed payments represent a significant challenge for MSMEs, which frequently operate on tight margins and limited resources. So it's my pleasure to welcome everyone to this event. Now we will start with the webinar and would like Anmol ji to continue further. Anmol ji, you can proceed now. Thank you so much, ma'am, for the lovely welcome. So today through this webinar, हम डिस्कस करेंगे कि डिलेड पेमेंट की जो प्रॉब्लम है, आई बिलीव मोस्ट ऑफ द कंपनीज हियर आर एमएसएमईज, एंड एमएसएमईज के लिए बहुत, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट रिसोर्सेज, सो इन दैट अगर उसमें भी पेमेंट फंस जाए तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कंपनीज के लिए. सो थ्रू दिस वेबिनार हम ये डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट मी शेयर सम स्लाइड्स विद यू. इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Since most of the companies here, most of the members are MSMEs, तो जो delayed payment की definition है जहाँ से हम लेते हैं, because delayed payment can be subjective, किसी के लिए 10 दिन भी डिले, किसी के लिए 60 दिन भी डिले है. तो from where we seek this definition is from the MSME Act. MSME Act के according, as per section 15, the payment has to be made within 45 days, unless कोई हमारा agreement है हमारे buyer के साथ, which is less than that. अगर आपका अपने buyer के साथ 60 days का भी time है, but in that case also पेमेंट हैज टू मेड इन 45 डेज. सरकार ने ये लॉ इसलिए बनाया क्योंकि ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एमएसएमईज हैं, तो कई बार ऑर्डर्स लेते टाइम वी आल्सो डोंट सी कि हमारी एक्चुअल टर्म्स क्या हैं. 60 to 120 डेज भी हो जाती हैं, बट वो एक एमएसएमई के लिए ज्यादा है. सो फॉर दैट केस, ताकि एमएसएमई को कोई प्रॉब्लम ना आए, द टाइम फ्रेम, द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम जिसके अंदर द अदर पार्टी हैज टू मेक द पेमेंट इज 45 डेज, और एनीथिंग बिलो दैट, अगर आपका कोई रिटन अग्रीमेंट भी है, then this particular section will supersede it. So first thing we need to know that is कि 45 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए. अगर आपकी पेमेंट 45 दिन से डिले है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो वो डिले पेमेंट की कैटेगरी में ही आएगी. और क्योंकि हम यहाँ पे डेज की बात कर रहे हैं, इसमें एक हमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की है कि जस्ट इन केस हमने कोई गुड सप्लाई की है एंड दूसरी पार्टी लेटर ऑन जाके कहती है, व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग फॉर पेमेंट्स, कि आपके तो गुड्स में कोई कमी थी या सर्विसेज में कहीं कोई डेफिशिएंसी थी. इन दैट वेरी केस, इसी पर्टिकुलर एक्ट में द वेरी नेक्स्ट सेक्शन इट टेल्स अबाउट द अपॉइंटेड डेट, विच इज द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस. कि अगर आपने अपने कोई गुड सप्लाई किया, कोई सर्विसेज रेंडर की, और उसकी पेमेंट तो आपको आई नहीं, बट जो बायर था उसने कोई डिस्प्यूट भी रेज नहीं किया,
और 15 दिन के अंदर कोई रिटर्न में अगर डिस्प्यूट नहीं आता, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस. लेटर ऑन अगर आप पेमेंट मांगने जाओ, वो पेमेंट नहीं देता, वो गुड्स में कोई कमी निकालता है, तो दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज. व्हाटएवर इशू इज देयर हैज टू बी रेज्ड विद इन दीज 15 days. 15 days के बियॉन्ड अगर कुछ होता है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड. सो 2 days दैट वी नीड टू नो इज, एक तो कि डिले पेमेंट कब कंसिडर होगी, 45 दिन से ज्यादा है, और आप दूसरी पार्टी कब तक कितने दिनों में ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, वो है 15 दिन. हम ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफी बार क्या होता है, बिकॉज हम सिर्फ गुड्स दे नहीं रहे, हम गुड्स खरीदते भी हैं काफी टाइम, एंड कई बार ऐसे हो जाता है बिकॉज कि आपकी दूसरी पार्टी से टर्म्स अच्छे हैं और आप भी कई बार ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाते टाइमली, आपको लगता है कि बाद में रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि रेक्टिफाई आपको बाय राइटिंग करना है. अगर गुड्स में अगर कोई कमी थी और आपने उनको नहीं बताई 15 दिनों के अंदर अंदर, आपने डेबिट नोट नहीं रेज किया, आपने क्रेडिट नोट नहीं मांगा उनसे, तो इन दैट केस आपके ऊपर भी वो इशू है, बिकॉज वो फिर आपके एंड से दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिलेड पेमेंट. सो these two day frame is what we need to know. Now that we know this, coming next to reasons for the delayed payment. एक MSME की पेमेंट डिले क्यों होती है, क्या रीजन है? एक तो देखिए कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, स्टाफ हमारे पास लिमिटेड है. इधर वी कैन फोकस ऑन मार्केटिंग, मोस्टली जो हमने देखा है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में MSME की ग्रोथ भी हुई है, तो ज्यादा फोकस हमारा ऑर्डर्स लेने पे और इन सब चीजों पे लगा रहता है. पेमेंट का हमें लगता है कि चलो पेमेंट तो आ जाएगी, बट देन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो इसी हमने रीजंस के बारे में बात की कि क्या रीजंस है कि पेमेंट हमारी फंसती है और हमें टाइम लगता है बाद में इसको रिकवर करने में. फर्स्ट इज नॉन वेरिफिकेशन ऑफ द बायर. काफी बार क्या होता है कि मोस्टली अब जो ऑर्डर्स हैं आज की डेट में, ये इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन सब के थ्रू हम लेते हैं. अब इन सब के थ्रू जब हम ऑर्डर्स अपने ले रहे हैं तो काफी बार हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते दैट वो जेन्युइन है कि नहीं है, बिकॉज इंडिया मार्ट अपनी तरफ से तो दे डोंट प्रोवाइड यू एनी गारंटी कि जिनको आप सामान दे रहे हो आपको वहां से पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी. दे आर जस्ट एन इंटरमीडिएरी. और भी बहुत रिसोर्सेज हैं, कई बार आपको किसी लीड का कॉल आ जाता है, दे आस्क फॉर समथिंग, तो इसमें हम अगर उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज आल्सो रीजन कि हमारी पेमेंट फंस रही है. अगर एंड ऑल्सो अगर पेमेंट हमारी फंस जाए लेटर ऑन, इफ वी वांट टू फाइल अ केस, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास उनकी सारी डिटेल्स हो, कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमें पता तो चले हम माल सप्लाई किसको कर रहे हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द काफी केसेस में क्या होता है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज, हम किसी को ऐसे अलग से सेग्रीगेट नहीं करना चाहते, बट काफी केसेस में बिहार की और यूपी के कुछ एरिया की, झारखंड की, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोकल लॉज काफी स्ट्रांग है. दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ कि चलो हमारा बिगाड़ लेगा, और उस केस में अगर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो इन सच केसेस इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें. हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर हम क्रेडिट पे माल सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमें पेमेंट पहले ही आ रही है, एडवांस आ रही है, तो इन दैट केस ओके, इट कैन बी अवॉइडेड. बट जहाँ पे हम क्रेडिट पे माल सप्लाई कर रहे हैं और फिर भी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है बायर की, तो फिर तो अगर पेमेंट डिले हो गई और आगे हमें मिले ही ना पेमेंट खराब हो जाए, तो वो तो फिर वो हमारे ऊपर ही रहेगा. तो इसलिए टू अवॉइड सच केसेस मैंने एक लिस्ट बनाई है, आई एम शेयरिंग दैट विद यू ओवर स्क्रीन, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट. कि आप उनके, जैसे काफी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, दे हैव अ, जो भी बड़ी कंपनीज है, महिंद्रा होगी, कोई भी नेचर की कंपनी होगी, दे हैव अ प्रॉपर KYC, दे डू अ प्रॉपर वेंडर रजिस्ट्रेशन बिफोर डूइंग इट. हम MSME है तो हम उस एक्सटेंट तक नहीं जा सकते, बट या हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम उनसे ले सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो गिविंग देम द गुड्स ऑन क्रेडिट. तो मैं आपको वो एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, यू कैन नोट इट डाउन कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे हेल्प हो सकती है इससे. Is this form visible? Screen पे क्या visible है? Anmol ji, हाँ जी. I would like to request if you could continue in English, because few members they are from the south, so they may not continue in English. All right, I'll use a mix of both so that everyone is comfortable. Yeah. All right. So now that we're talking about that, whenever we are providing goods on credit and whenever we are not sure about when you are getting the orders through an online forum like Trade India or India Mart, it becomes important that if we are providing goods on credit, that we have all the required information of the buyer. We have all the information so that at least later on, if you want to proceed with any case or maybe demand some payment or look for
or जिनको हम whoever have provided goods to. So it is important that we have all the information. So like I was talking about, like many big companies, they have this vendor registration. So we being in MSME, we can't have a proper registration portal, but yeah, we can ask for certain documents and ask them to fill this form at least. So for that, I'll later be emailing it to ma'am as well so that they can share with you. But now you can have this sort of form for your organization as well whenever you're providing goods on credit, starting with the name of the company and the firm. At times what happens is that जब भी हम goods supply करते हैं, the purchase order or invoice is from some firm and supply kahin aur ho rahi hai. So in this we should know, like, to whom are we selling the goods to, name of the company and the firm, and also the individual. If it's a partnership firm, this becomes a huge problem whenever there's a partnership firm, because it is you never know who the partners are. For a proprietorship firm, you can obviously verify the details, but for partnership firm, it becomes difficult. So like, you should know the name of the company and the firm, the type of business which they are in, proprietorship, partnership, LLP. Mostly for private limited companies in LLP, you can check all the details through the MCA portal, but not for the any other forms like for trust, NGO. So for that, we will be needing more information, their registered address and place of business. For this also, at times they are rented premises where it becomes difficult to later on track them if they switch their businesses. But yeah, having all their addresses of the business as well, and also of the proprietor or their authorized representative, this helps us in the long run. Their date of incorporation information. From this, isse like you can get an idea ki when they all started with and how old they are, and so that we know that it's not a company which can close down any moment. जितनी पुरानी होगी उतना credible रहेगा आपके लिए. Their registration number, SIN number to some extent it is there, or it is there online as well for a private limited company. But whatever registration number are there, like the GST registration number, or if they are registered as a trust and NGO, whatever registration number, that should be there. Then coming to their PAN number, it's mandatory. You should know their PAN number. Also, if later on, like if you file a case and we have to go for an execution, so it's important because all the bank accounts and everything, it's linked to the PAN number. So PAN number is very important. Their telephone numbers, all the numbers that which we have. Most of the cases में क्या हम देखते हैं कि जो numbers हमारे पास होते हैं, the numbers that we have, mostly होते हैं उनकी purchase team के होंगे, किसी के होंगे, but not of the actual owners. But whenever जब आप ensure कीजिए कि जब भी आप goods supply करें credit पे, you have the telephone numbers not only of their team, but also the telephone numbers of their of the owners as well. Their IEC number in case you are doing any part delivery abroad or somewhere else. Import export code number, IEC number, their mobile numbers, their email IDs, whatever we can have, and addresses for correspondences also. You can have this kind of form. If we can get a passport size picture as well. I know these formalities can create some hassle because like we are supplying them with goods, so they can say कि आप इतनी formalities करें, but जिस extent तक हम उनसे ले सकते हैं details, हमें ले लेनी चाहिए. Name, address, mobile number, PAN number of the representative as well, or proprietor here, or whoever is who's the main signatory. If it's a big company, so whoever is representing them, we can have the particular details of those individuals as well. Their Aadhaar card. I know passport, it would be difficult. They won't give it, but we just mentioned जितनी हमें details मिल जाए, voter ID, bank account, passbook, copy of that. And here are like few documents depending upon their incorporation, which we can ask them for. Like it's a corporate company, the certificate of incorporation, MOA, AOA, power of attorney, copy of the board resolution, so that later on, like whoever is placing the order, we know that he is actually authorized to do so. If it's a sole proprietorship, we should ask for their GST registration certificate, their PAN card, their Aadhaar card. ये documents अभी हमें ज़्यादा लग रहे हैं, and we have mentioned like in this file also, like which all are mandatory. Few of them can be avoided, but the more we have, it's better, because later on if we file a case and we have to go for execution, वहाँ ये problem आती है that अगर these party don't come up and हम X party award है, तो execute ही नहीं हो पाएगा, हमें पता ही नहीं होगा कि वो based out कहाँ के हैं, उनकी information क्या है. So whatever information we can get through this. So इसमें जो major documents हैं, that is the PAN card and Aadhaar card. अगर आपके पास ये दो documents हैं, and because अब सब कुछ इसी से linked है,
तो काफ़ी ईजी रहता है फॉर कंप्लायंस पर्पसेस कि कल को इफ़ यू वांट टू एक्चुअली proceed with any case regarding the delayed payment. So these two documents are very crucial. Rest are also there, but these two are mostly crucial. यहाँ पे IEC number ये सारे numbers इसीलिए मांग रहे हैं so that later on if get any orders in our favor and they still don't comply with it. तो ये इन सब numbers की cancellation भी we start going. Even like during this webinar I'll be talking about MSME समाधान, that how recovery can be made through that. उसमें द स्पेशल प्रोविजन इज दैट अगर ऑर्डर पास होने के बावजूद भी दूसरी पार्टी पे नहीं करती है देन वी कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन. इफ वी गो फॉर दैट तो उनका सारा काम भी रुक जाता है. बट वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हम तभी वहां तक जा सकते हैं. इफ वी गो फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, लुक फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, हियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी एक्चुअली at least we have a partnership deed or the name of the partners, because else it becomes very difficult to get any orders enforced jahan pe partnership firm hai wo and we have no clue who the actual partners are. Even in the checks and if we get of a partnership firm, it becomes very unclear like who are the actual owners. So if you go from a partnership firm, if you're getting any order from them, so it becomes important that we know. Private limited company or LLP ka to it's there, but for us it's not. HUF trust registered society, although यहाँ से orders बहुत usually in company in entity से they are not that much to businesses these days, but then also like for HUF also we should have the PAN card of the HUF and also of the Karta. Same is with the trust. If we are engaging with the trust, we should have a copy of their trust deed and the PAN numbers or the power of attorney. Registered society also, we should have their PAN card and their certificate of registration. Now coming back to the precaution that we're seeking, now that we know how to verify the buyer, now we'll come to the next step. It is for when the follow-ups are not done regularly. Like in most of the cases, हमें लगता है कि that we have supplied the goods and they will make the payment, and at times we do follow-ups over the phone. But here, when I say about follow-ups, it's not the follow-ups that we do on the phone, because उनका कोई acknowledgement भी नहीं होता, and it's not कि आपने call record कर भी ली, then also later on you can hold them accountable. That's not the case. फॉलोअप से मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि फॉलोअप्स वो फॉलोअप्स हैं जो हम उनको राइटिंग में ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं या एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस पे कर रहे हैं, सो दैट लेटर ऑन वी कैन से कि हम दैट वी आर एक्चुअली फॉलोइंग इट अप. बिकॉज फॉर अ व्हाइल इफ यू डोंट फॉलो अप द केस, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाता है एंड आफ्टर अ पॉइंट वी कैन नॉट इवन क्लेम आवर पेमेंट, इवन दो जहाँ पे गुड्स थे, एक्नॉलेजमेंट ही सब कुछ था, बट अगर आपने फॉलोअप्स टाइमली नहीं किए, लेकिन ऑब्वियसली से कि इतना टाइम निकल गया, आपने मांगी नहीं पेमेंट अगर आपकी थी तो इन सच केसेस doing follow-ups is also important, and जहाँ पे नहीं होते वहीं वो कारण बनता है for the delayed payment. So doing follow-ups through writing is very important, and जहाँ पे नहीं होता वहीं delayed payment होती है. And when I'm talking about follow-ups, I here mean like falling for the payment as well, and जहाँ पे आप payment मांग रहे हैं उनसे, उसका उस email में आप क्या क्या लिखेंगे. The email should be very very specific, like you should mention the payment so that later on payment पे dispute ना हो. आपने फॉलो अप तो कर दिया कि जी हमारी पेमेंट नहीं आ रही, दे आर नॉट मेकिंग द पेमेंट, बट यू नॉट मेकिंग व्हाट द पेमेंट इज, व्हाट द पेमेंट अमाउंट इज, सो लेटर ऑन दैट कैन आल्सो बिकम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट. सो इन द ईमेल्स जहाँ पे wherever we are asking for payment, doing follow-ups, it becomes important that we mention what the payment amount is, and also it is important that you share the ledger statement in that follow-up email, like so that would reflect, because in a ledger statement that would have all the accounts, all the transactions. So later on, if you're doing follow-ups with them with the ledger statement, later on they cannot come and claim that okay, we were not aware about this transaction, or because we were regularly following up, we were regularly sending them the ledger statement. So later on we have a very strong case if it comes to the case. वैसे भी like nowadays all the transactions they happen through GST invoice. So GST invoice is not something which even they can back out from, because it's a GST invoice, they get a notification whenever invoice is raised, they take the input credit. But it's still important that we share them the ledger statement in the follow-up emails, that whenever we are doing the follow-ups, and follow-ups should also be regular. I'm not saying कि आप उनको रोज email डाल दो, but एक periodic in your organization, if you have an organization, if you have a dedicated team for it, you have an accountant, so you can obviously decide it internally, like how to follow up, how many emails have to be written,
what span of time, suitable to your industry, कि आपको पता है कि आप कितनी emails कैसे लिखेंगे तो उनको पता रहेगा. So in follow-up, while doing follow-up, it's important to add the ledger, and also if you can mention your bank statement and as your bank details as well, so that they can see, उनके पास कुछ बात ना रह जाए कि हमें तो पता नहीं था या फिर पता नहीं था पेमेंट कहाँ करें कैसे करें. वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फॉलोअप ईमेल में डिटेल में डाल दें, नॉट जस्ट कि हमारी पेमेंट कर दो, कब कितनी पेमेंट है, कैसे करनी है और किन बिल्स से अक्रूड है, वो लेजर स्टेटमेंट में आ ही जाएगा. दैट यू शुड डू. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, the third reason why the payment gets stuck for an or for organization like yours is where all the goods are released on credit. जहाँ पे हम सारा माल ही क्रेडिट में देते हैं, वहाँ वो एक प्रॉब्लम आ जाती है. आई नो लाइक सबकी इंडस्ट्रीज में अलग अलग होते हैं जो भी एक प्रैक्टिसेस हैं. काफी बार हमें सामान क्रेडिट में देना होता है, एंड वी एस्केप फ्रॉम दैट. बट वी शुड ट्राई कि जहाँ पे क्रेडिट लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, लाइक देयर शुड बी सम एडवांसेस देयर सो दैट you know about the credibility of that organization also, कि जो आपको थोड़ा भी देने की capability रखती है. Only those are the organizations which can actually later on pay you. So in such cases, it is important that you not everything should be based on credit. There should be some advances as well. Another reason is that when all the business transactions are left on staff and marketing team, there are all the cases जहाँ पे पेमेंट फंसती है. When you leave everything for marketing team, जो उनको तो उनका काम सेल करने का है, तो वो तो they don't know like what your term should be. कंपनी कैसे सस्टेन कर पाएगी. ऑर्डर्स अगर आप सारे क्रेडिट कर देंगे तो सबको ऑर्डर्स मिल जाएंगे. So it is important that there should be an intervention from the management, from the owner, that they should look into like how the transactions are happening in a company. कैसे कैसे चल रहा है, कितना किसका क्रेडिट खड़ा है, जहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है वहाँ पे you should intervene personally ताकि पेमेंट अटके ना. Else if you leave everything to the marketing team, then the people they come and go, but आप ही कंपनी वहीं है, आप वहीं हो. So बहुत जरूरी रहता है उस केस में कि आप you personally intervene in such cases और आप उसको निकालने के लिए एक्शन लें और टाइमली एक्शन लें. Another reason is that जब आपके रजिस्ट्रेशन और आपका जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं हुई, like these very cases that this webinar is mostly based for MSME समाधान. अगर आपको MSME में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो फॉर्मेलिटीज ही नहीं है, बिकॉज MSME में सिर्फ रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ हर साल आपको यू हैव टू रजिस्टर इट, यू हैव टू रिन्यू इट. अगर आपने वो नहीं करा रखा तो आप इस स्कीम के बेनिफिट नहीं उठा सकते, एंड इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो जो बाकी ऑप्शंस हैं टू गेट योर रिकवरी, दे आर नॉट दैट इफेक्टिव. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट all the registration, all the formalities which are there, which should be done so that you can get your payments. Also, if you can seek security check, जहाँ भी आप पेमेंट आप अपने एडवांस में गुड्स दे रहे हैं, तो बेटर है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी चेक्स आ जाएं. सिक्योरिटी चेक काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है सिक्योरिटी चेक से, बिकॉज देन सिविल केस तो रहता ही, बट एक क्रिमिनल एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है, बिकॉज डिसऑनर ऑफ चेक कम्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. So it is important like you do it. I know a lot of companies are not that comfortable with issuing security checks. You may not get it every time, but whenever you get a chance to have a security check, you should avail that option. Also, there's one more reason. Like I know most of the companies they raise their GST invoices, right? But at times, whenever we supply goods on challans or for cash, in that case it becomes very difficult. आपका चाहे उनसे लिखित में कुछ भी चल रहा होगा, मैसेज पे कुछ भी चल रही होगी बात, but if a valid GST invoice is not raised, in that case recovery becomes difficult. GST invoice has to be there. Even a performer invoice won't help you in a long run. अगर आपने सिर्फ एक performer invoice raise कर दिया, उनको बता दिया इतने के goods हैं, that alone is not sufficient. You should have GST invoices with you that you should raise, and in a timely manner, because whenever you're supplying the goods above certain point, you obviously need an e-way bill that has to be generated, and that is based on that GST invoice only. So it is important that a GST invoice is raised. Else अगर आपने goods supply किए किसी भी method से और कितनी आपने उनसे वो लेनी है, evidences लेनी है कि हमने supply किया था, चालान था, transporter की purchase, सब कुछ है, that won't be sufficient. GST invoices are important and should be raised. Another reason जो हम देखते हैं काफी बार, that enterprises at times are not aware कि एक limitation act करके भी कोई चीज है. Like for limitation for recovery is 3 years. आपने गुड सप्लाई किया और आपने 3 साल के अंदर में कोई भी एक्शन नहीं लिया, in that case आप केस डाल ही नहीं सकते beyond a reasonable time. लोग ये कहते हैं कि पैसे लेने हैं, तो एक रीजनेबल आदमी will take an action within
within three years. But 3 years, if you don't take any action, then the Limitation Act applies, and it becomes very difficult to take the payment. And Limitation Act, it starts from the goods जब आपने supply किए थे और जो last payment उन्होंने किए तब से 3 साल. ऐसा नहीं कि अगर आपने उनको follow ups करते रहे तो वहां से 3 साल गिनेंगे. That's not the case. Limitation Act, it applies from the last transaction visible on the ledger. It could be supply of the goods or receiving of the payments. So from that date till 3 years, you have to take any action. If you don't take any action, then Limitation Act will come, and beyond limitation, you can't even file a case. तो अगर आपके पास सारे proofs हैं, सारे evidences हैं कि आपने good supply किए थे, but 3 साल तक अगर कोई action ही नहीं लिया आपने, तो उस केस में तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकता. तो टेकिंग एक्शन टाइमली इज इम्पोर्टेंट. बट अब क्योंकि हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें ना, आपके काफी मेंबर्स हैं जिनकी अभी पेमेंट्स ऑलरेडी फंसी होंगी, जिनको इस बारे में नहीं पता. तो इस केस में ये हम देख सकते हैं कि अभी जो कोविड टाइम था 2 साल का, 2020, 2021, 2022 का भी कुछ पार्ट स्टार्टिंग का, दैट केस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी दैट पर्टिकुलर टाइम विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग लिमिटेशन. तो उस केस में आपको वो 2 साल नहीं गिन रहे, तो लाइक यू हैव 3-4 years फॉर नाउ, बट फ्रॉम नाउ उसके बाद से अब आपने कोई एक्शन ले तो आपको विद इन लिमिटेशन पीरियड लेना है. बियॉन्ड इफ यू एक्सीड दैट लिमिटेशन पीरियड, उसके बाद तो फिर आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे. एंड लिमिटेशन पीरियड में आपको रिकवरी का बता रहा हूँ, बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बाकी सबका अलग अलग लिमिटेशन पीरियड, बट रिकवरी की बात हम कर रहे हैं. एमएसएमई समाधान है, कोई भी सिविल रिकवरी की बात करें, उसका टाइम 3 years का ही रहता है. अगेन अनदर इशू जो हम देखते हैं जहाँ पे दूसरी पार्टी का भी एक रीजनेबल, उनके पास भी एक रीजन होते हैं नॉन पेमेंट, इज व्हेनेवर देयर इज अ नॉन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और कंसर्न्स रेज्ड बाय द बायर. जहाँ पे भी हमने कोई गुड सप्लाई किए और बायर के कोई कंसर्न्स थे, इफ यू डोंट रिजॉल्व दैट कंसर्न्स इन अ टाइमली मैनर, तो वो पेमेंट आपकी फंसी जाती है. अगर मैंने किसी को गुड सप्लाई की, उसमें देयर वाज सम डेफिशिएंसी, इफ आई डोंट रेक्टिफाई दैट डेफिशिएंसी इन अ टाइमली मैनर, in that case, और वो इशू बन जाता है, तो वो पेमेंट आगे तक फंस जाती है. you are left with no other option but to go for litigation later on. उसमें भी कई बार काफी बार डिले हो जाता है. तो it is better like whenever you see you're supplying any goods, वहाँ पे कोई इशू अराइज हो रहा है, तो सारे काम छोड़ के आप पहले उस इशू के बारे में ध्यान दीजिए, बिकॉज वो पेमेंट आगे आपकी फंसेगी ही फंसेगी. So it's important that in such cases, wherever there is an issue, wherever there is a dispute, you can foresee कि ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. In that very case, it is important that you resolve that dispute first, so that कल को पेमेंट नहीं भी देते या फिर कल को मैटर कोर्ट में जाता है. In that case, we can say that okay, see, we took all the reasonable steps to ensure that the dispute is resolved. या उन्होंने हमें resolve करनी थी, but हमारी तरफ से our intention should be clear that we were willing to resolve all the disputes. Payment was not made. Now that we know कि हमारी ये dispute, हमारी पेमेंट अटकने के reasons क्या हैं, now we'll start with how we can actually recover the payment which has been delayed. Delayed payment की definition भी हमने भी इसमें समझ ली थी. So we'll see कि कैसे कैसे हम recovery कर सकते हैं. Recovery करने के बहुत सारे तरीके हैं, like could be civil and criminal remedies, but we can see कि हमारा क्योंकि operational letter is mostly on the civil side, तो उसमें हम कैसे legally recovery कर सकते हैं. Our first step is we can start with sending a legal notice. We all are enterprises, सबके orders होते हैं, सबके business terms होते हैं. It's so straight away filing a case, it is not advisable. You can like in the follow-up emails, firstly is to mention the follow-up emails that you will initiate a legal action if they still don't make a payment. जब वो आपने उनको legal action के बारे में mention कर दिया अपने follow-up emails में, then also if they're not responding to you, they're not coming forward for the making any payments, in such case it is important कि आप उनको legal notice भेज दें, ताकि आपको भी रहे कि हमने सारे steps लेते हैं. Legal notice में भी what we mention is that this is the payment and these are the consequences of not making the payment. And if they make the payment in the reasonable time, then we won't be proceeding with the case, and else we will have to proceed a case. तो लीगल नोटिस पहला स्टेप होता है. किसी भी केस को स्टार्ट करने का पहला स्टेप लीगल नोटिस होता है. ऐसा नहीं कि हमारी देयर इज अ कंपल्शन कि हमें केस डालने से पहले लीगल नोटिस भेजने हैं. इन पर्टिकुलर मैटर्स में ऐसा जरूरी नहीं है. आपने उनको जब फॉलो अप ईमेल्स लिखे हुए, सारी चीजें की हुई हैं अपनी साइड से, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. बट इन सच केसेस क्योंकि हम लाइक केस हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी पुटिंग ऑल द लीगल एक्सपेंसेस, इट्स बेटर कि एक लेटर, एक लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू भेज के हम देखें कि इसमें क्या पता हमारी पेमेंट आ जाए. बट इट इज अगेन इम्पोर्टेंट कि लीगल नोटिस के कॉन्टेंट्स क्या हैं. Usually, I don't know, like members in which they could be in different places, but काफी जगह के when we see the legal notices, we feel that this won't suffice.
Legal notice का मतलब ये नहीं है that in this 2 pages we mentioned that okay this was the payment and you're not making the payment, make the payment or you'll file a case. Usually आजकल like people are more they have more thick skin, they don't get intimidated by such legal notice. तो legal notice भी आप जितना डिटेल रखेंगे, जितना उसको intimidating बनाएंगे दूसरी पार्टी के लिए, that will obviously get a reaction. Normal 2-page notice people might not take it seriously. So just if you can allow me, I can लीगल नोटिस आप सबने देखे होंगे, बट कैसे इफेक्टिवली एक लीगल नोटिस हम भेज सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी आ जाए, दैट वील सी. जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट. या सो दिस इज आई एम शेयरिंग अ फॉर्मेट ऑफ अ लीगल नोटिस. लाइक हम लीगल नोटिस भी तभी भेज पाएंगे, वी कैन सेंड इट ओनली इफ यू हैव ऑल द डिटेल्स. सो it becomes important, like I was telling ki whenever we give any supply any goods on credit, we should have all the details, only then we can effectively send these notices. Else हमें पता ही नहीं होगा कि notice भेजना किसको है, who is the right person. So it is important, like we know the details of the person, we have their email address, we have their phone number, and accordingly we can send them a notice. Notice में we basically have to mention everything, like all the contents जो हम case में वैसे ही हमें देने हैं. If we mention all that in the legal notice, there are chances that the case might actually get settled. So we mention what business are we in. We have to mention that how we were approached by the buyer to provide them goods on credit, and how even after oral and written communication, we are not able to get the amount and what that amount is as per the ledger and the invoices. We mentioned that there were several telephonic messages and communications were made otherwise as well, which I have also told you कि हमें जब whenever we are following up, we should follow up in a regular way. We also mentioned that in order to delay the payment, they made multiple excuses. We mentioned that we provided the goods based on their commitments. We provided the goods on credit based on their commitments, promises and assurances, which they displayed at that point when जब उनको goods की जरूरत थी, और उसके बाद goods लेने के बाद कैसे they just backed out from all their commitments. Although we just mentioned that it is a civil offense, but still, in order to put pressure on the other party, we mentioned that okay, this is actually a criminal offense which they have committed. It's cheating, it's criminal breach of trust, it's fraud. We also, because although like in like NCR in these areas, ये हम civil offense में आते हैं, it is almost impossible for you to register an FIR कि अगर आपके कुछ time नहीं आ रहे. But कुछ states, कुछ cities में ऐसा possible हो जाता है कि इस cases पे भी FIR हो जाए. But mostly जहाँ metro cities हैं, जो शहर है, वहाँ पे इन बेसिस, मतलब जहाँ पे सिर्फ हमें पेमेंट नहीं आ रही, उस इस पे FIR रजिस्टर नहीं होती. बट वी स्टिल मेंशन है कि आपने जो काम किए हैं वो 420 है. 420 की पनिशमेंट क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसकी पनिशमेंट क्या है, कैसे जो उनके ऑफेंसेस हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ अ क्रिमिनल नेचर एंड FIR शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू. वी ऑल मेंशन ऑल ऑफ दिस ताकि दूसरी पार्टी को थोड़ा डर हो कि उन्होंने कुछ गलत किया है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेंशन ओके, इन व्यू ऑफ मेक आवर पेमेंट of the principal amount along with interest at the rate 24% per annum, 5 lakh for hardship for this notice. We mention all of this. ये mention करने का हमारा सिर्फ ये तरीका रहता है कि वो डर के क्या पता उनको पेमेंट आ जाए, क्या पता वो पेमेंट दे दें और मैटर यहीं रिजॉल्व हो जाए. जहाँ मैटर रिजॉल्व नहीं होता वहाँ पे तो वी शुड ऑब्वियसली हैव टू रजिस्टर केस, बट जहाँ पे हो जाए वहाँ बहुत अच्छी बात है. एंड ऑल्सो व्हाट वी डू इज आई विल बी शेयरिंग अ केस इंटीमेशन देयरआफ्टर. वहाँ पे हम क्या करते हैं कि we CC this notice to 2-3 departments. We CC this notice to the GST commissioner. We CC this notice to the commissioner of police. हम उसको we mention that we are CCing, don't actually have to send it because हम वहाँ भेजेंगे भी तो एक्शन होने का ज्यादा कुछ चांस है नहीं नोटिस के बेसिस पे. बट ताकि दूसरी पार्टी पे प्रेशर है कि चलो ठीक है, इतने सब झमेलों में हम पड़ेंगे, इतना हमें कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट जस्ट सेटल द केस आउट. एंड यहाँ पे उनकी इंटेंशन का भी पता चल जाता है कि जिस पार्टी ने अगर लीगल नोटिस देने के बाद भी पेमेंट नहीं देनी, देन इन दैट केस तो वो केस आगे ही जाएगा. Second what we can do is wherever we have security checks that I mentioned before, जहाँ पे हमारे पास security checks हैं, there we can file a complaint under section 138. And it is important because whenever we file a complaint under section 138 of the negotiable instrument, जब हम check bounce का केस डालते हैं, in that case timelines are very crucial. Like because check, as we know, is valid only for a period of 3 months. So मैं check have to put that, deposit that check within time. And once we get a return memo, we have to issue a legal notice within 30 days.
30 दिन के बाद अगर हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे तो दैट हम उनके ऊपर लेटर ऑन वी कैन नॉट फाइल अ केस. So again limitation period comes in. So check is valid for 3 months. Whenever we get a return memo, we have to issue a legal notice within 30 days under section 138. And after 30 days, if we don't get any reply, then we have to file a case within 1 month. So in such case, at times, because again these MSME organizations not that big to keep track of everything, but whenever जब checks की बात आती है, तो it is important that we keep all these timelines in our mind. Another way is for recovery could be commercial suits, although we don't advise it, because commercial suits, whenever the civil litigation की जहाँ भी बात आती है, whenever there are civil disputes, so the jurisdiction, if it's not mentioned anywhere in the invoice or the purchase order, जहाँ jurisdiction mention नहीं होती है, in such cases the jurisdiction lies at the place of defendant. तो जहाँ आपने गुड सप्लाई किए हैं, आपको केस वहां डालना पड़ेगा अगर आप सिविल सूट में जाएंगे तो, अनलेस अगर आपने इनवॉइसेस पे या परचेज ऑर्डर पे स्पेसिफिकली मेंशन किया दिस गुड दैट दिस इज सब्जेक्ट ऑल डिस्प्यूट आर सब्जेक्टेड टू दिस jurisdiction Delhi jurisdiction, unless that is specifically mentioned in the if it's not mentioned, you have to file a case in their jurisdiction जहाँ पे डिफेंडेंट लोकेटेड है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनकी लोकल एरिया में. देखिए दे आर बेस्ड आउट इन झारखंड, बिहार, वहाँ पे तो यू नो हाउ कोर्ट्स आर. सो this is one of the way, but it is not the best advisable way to get your recovery. Commercial suits तब कर सकते हैं whenever amount involved is less, or where both the buyer and the supplier are located in the same jurisdiction, or where you have in your invoices you have mentioned that okay the jurisdiction would be this, but then again agar even if you mention that okay this would be subject to Faridabad jurisdiction, जहाँ पे execution की बात आएगी, execution तो वहीं करानी पड़ेगी जहाँ पे buyer की location है. So in such cases it's not advisable. But now that we're talking about commercial suits, so commercial suits में commercial courts act के अंदर एक नया provision है, like whenever you want to initiate a commercial suit there has to be a pre-suit mediation. तो पहले जो भी आपका केस है, आपका कमर्शियल सूट है फॉर रिकवरी, वो सीधा इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इट स्ट्रेट अवे, अब आपको पहले उसमें मीडिएशन करवानी होती है. सो देयर इज अ प्री सूट मीडिएशन. हर कोर्ट में मीडिएशन सेंटर है, तो पहले आपको मीडिएशन सेंटर को अप्रोच करना होता है. यू हैव टू फाइल अ केस देयर, यू फाइल एन एप्लीकेशन देयर वेयर बोथ द पार्टीज आर कॉल्ड एंड दे ट्राई टू सेटल द मैटर. इफ द मैटर फेल्स ओनली देन यू कैन अप्रोच द कमर्शियल कोर्ट. एमएसएमई का भी सेम ही तरीका था, बिकॉज ऐसे मैटर्स में इवन द कोर्ट नोस कुछ मैटर्स हैं जो सेटल हो सकते हैं, तो उनको आगे क्यों बढ़ाया जाए. सो उसी अप्रोच को फॉलो करते ही दे हैव implemented this rule, so you can go with that. Whenever commercial court में, like whenever we approach the commercial court, there's certain court fees that we have to pay. तो अगर आप 5 लाख का केस डालें, 10 लाख का केस डालें, तो उसका कुछ परसेंटेज you have to deposit in the court. वो भी एक ड्रॉबैक है कमर्शियल सूट में जाने का. बट इन केस आपको लगता है कि क्या पता प्री सूट मीडिएशन डालेंगे, दूसरी पार्टी को कोर्ट में आना पड़ेगा फॉर दिस मीडिएशन टॉक्स, क्या पता मैटर तभी सेटल हो जाए, इन दैट केस वो कोर्ट फीस हमें नहीं देनी पड़ती. 1500-2000 की मीडिएशन फीस होती है. बट अगर वो वहाँ फेल होगी तो आपको कमर्शियल सूट में जाना पड़ेगा, इवेंचुअली वो फीस पे करनी ही पड़ेगी. तो दिस वाज एन ऑब्सोलीट मेथड. ये पहले जब एमएसएमई समाधान नहीं आया था तो मोस्टली कंपनीज ये प्रेफर करती थी, बट आफ्टर कमिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक लॉ फॉर डिलेड पेमेंट फॉर एमएसएमईज, people don't generally go for this. Now we talk about the main thing. It's the MSME Samadhan portal. So it's basically an online portal which was a portal है, but portal is to just start the case with. उसके बाद जो भी है वो that is all offline. हम केस डालते हैं वो ऑनलाइन डालता है, बाकी जो सारा प्रोसेस है इस केस का MSME समाधान का, जो हमारे अभी की वेबिनार का जो मेन एजेंडा है, like how can we actually recover, how can MSMEs recover, the best ways through the MSME समाधान portal. So basically it's an online delayed payment monitoring system governed by Micro Small Enterprises Facilitation Council. जो भी आपके एरिया की फैसिलिटेशन काउंसिल है, they are the main who will be looking for this case. जहाँ भी आपकी पेमेंट फंसती है, you can file a case to MSME समाधान. उसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है. इस who all can benefit, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, स्टेप्स क्या हैं, और थिंग्स टू कीप इन माइंड is what we'll be talking about from here now. So now who can actually benefit? Although it says MSME Samadhan, but only micro and small enterprises can file their cases under MSME. Medium enterprises को भी इससे दूर रखा गया है. Micro and small enterprises की definition में भी recently changes आए थे. So let's just go about कि अब current definitions क्या हैं और कौन-कौन इस केस से benefit उठा सकते हैं.
So micro enterprises are those enterprises where the investment in the plant and machinery or equipment is not more than 1 crore and when annual turnover is less than 5 crores. For a small enterprise, the investment in plant and machinery or the equipment should not be more than 10 crores and annual turnover should not be more than 50 crores. तो जहाँ पे आपकी investment 10 करोड़ से कम है और turnover आपका 50 करोड़ से कम है, in such cases only you can file a case under this. अगर आप medium enterprises है जहाँ पे आपका जो turnover है, फिर जहाँ पे आपकी investment है plant and machine, it's 50 crores and annual turnover 50 crores. In medium enterprises are not covered. Although traders cannot benefit from this scheme, but traders की जो definition है वो थोड़ी subjective है. जो traders हम समझ रहे हैं that are not like traders की definition, traders को इससे exclude किया गया because as per the MSME समाधान की जो उनकी committee है, they have decided कि जहाँ पे कोई there is generation of some goods or services उसको हम मानेंगे. But trading in general is also not just trading. It's the traders actually provide them with services to their buyers as well. It could be consulting, it could be even giving them their goods on credit is also a service. So even if a trader wants to file a case, they can, but then certain changes have to be made in their Udyam card. Only they can. Else if you have your Udyam card and just registered yourself just as a trader, तो वो case accept करेगा ही नहीं. So in such case it is important कि आप case file करने जा रहे हैं तो कुछ changes Udyam card में होंगे. You do those changes, only then you are eligible for it. But yeah, if we generally see medium enterprises and traders are kept out of it. So now, like we were talking कि कौन इसमें part ले सकते हैं, तो things to be kept in mind. जब यहाँ पे हम goods and services की बात कर रहे हैं और हम plant and machinery की बात कर रहे हैं, तो इसमें actual value को लेंगे हम कि आपकी actual value क्या है आपकी plant and machinery की, not the depreciated value. Written down value depreciate over the years काफी कम हो जाती है, हम उसको नहीं कंसिडर करते. वी सी द एक्चुअल बुक वैल्यू जिस पे वो मशीनरी ली गई थी. और जब भी आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो डिटेल्स डालें दैट डिटेल्स शुड बी करेक्ट, बिकॉज इफ यू फाइल अ केस विद उद्यम रजिस्ट्रेशन और आपकी खुद की डिटेल्स आर नॉट करेक्ट, सो पूरा केस खराब हो जाता है. सो व्हेनेवर वी वांट टू फाइल अ केस, वी हैव टू सी कि जो जिस उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम केस डाल रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट. And the process, if you can see process के लिए मैंने वीडियो ऑनलाइन, you can see वो डिटेल प्रोसेस पूरा क्या है. बट जब भी हम केस डाल रहे होते हैं, we have to see कि all the minute details are correct, like the date of invoice, the name of the parties to the very word are correct. कुछ भी अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो that becomes a reason कि वो केस क्यों खराब होता है. MSME cases mostly generally they are all decided in the favor of the seller only. MSME में ही डिसाइड होते हैं वो सारे केसेस. बट इन केस अगर हमसे खुद ही कोई ऐसी गलती हुई है तो वो फिर दैट कॉस्ट अस. एंड देन अगेन अगर हमने केस डाल दिया, किसी टेक्निकल रीजन से केस खराब होता है लेटर ऑन, तो आप दूसरा केस भी आपको सी की वो लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल. ऐसा नहीं कि दोबारा केस आप डाल सकते हैं. यू हैव टू सी कि वो 3 साल के अंदर ही डालना है. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन द इनिशिएशन एज वेल ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट. ऑल्सो इन द उद्यम कार्ड nowadays they have this NIC code. What all activities you are performing are based on the NIC code, which has to be there. So whatever goods you are providing, please ensure that all those goods are mentioned, or all the codes of those goods are mentioned there in your Udyam registration, so that there is no problem later on. And like I talked about earlier, the details of the respondent company has to be very correct. The email IDs and the phone numbers that you're putting while filing the case, they're all correct. So that later on it's not that कि आपने तो वो जैसे कि आपने तो हमारे एम्प्लॉय को भेज दिया, वो तो काम भी नहीं करता. All these details are important. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि you should have all the details. माल क्रेडिट में सप्लाई करें, you should have all the details of that buyer. Now once you file a case online, पोर्टल पे जब आप केस डाल देते हैं, केस डालने का प्रोसेस उसके लिए आपको मिल जाएगा. मैं भी केस डाल के आपको निकाला. वो प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस, तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ द केस, सिर्फ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो सिर्फ उससे आपका काम नहीं होगा. ऑनलाइन आप केस डाल देंगे, जनरेट ऑनलाइन जैसे हम केस डालते हैं, शो योर डॉक्यूमेंट, हमारे केस डालते ही देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट व्हिच द अदर पार्टी रिसीव्स. उस सेकंड so like whenever you file this case, this acknowledgement is generated having all the details, and this is also sent by the council to the other party, so it has all the details. And also they receive an email from the MSME council, a final email to make the payment within 15 days.
and if they fail to do so, all the provisions are mentioned that if they fail, then they have to pay the 3 times the bank rate of interest. So in such cases, this is what you will get once your case is registered under MSME. So basically, the documents that are required for filing a case would be the invoices, the purchase orders. Purchase order, if you don't have, they'll ask you for an affidavit that you received all those orders through verbally or through any other mode. Emails, any communication which you have, MSME Samadhan portal, case registration acknowledgement, which I just showed it to you, your Udyam registration, statement of claim, conciliation fee, other things to be kept in mind. So now, we are talking about MSME Samadhan. We say that okay, it's a special portal way by which you can recover your payment. So it is important that जो मैंने अभी पुरानी से पहले आपको जो process बताए थे, how is this one different from the other 3-4 modes that we discussed? So the first important reason is for filing a case under MSME Samadhan. It's very cost effective. It's like in suit for recovery, you need to have court fees that has to be paid. In this case, the council fees is not that much. Like in Haryana, it's like 3,500. अगर आपका 5 लाख का केस है, 5 करोड़ केस है, कोई भी केस है, तो जो council fees है, that is 3,500, जिसके बेसिस पे you can start a case. So the fees is very less. Later on, if like other MSME समाधान के भी steps होते हैं, the next step is arbitration. उसमें भी आप जाते हैं तो जो fees है, बाकी सारे अगर हम if we see all the other recovery modes, उससे काफी कम है. So it is very cost effective. उस वे में you won't incur that much expenses in comparison with other. Secondly is that in most of the cases, अगर आपको if you have a very simple case, in that case you can handle your case yourself only. Like for other cases, अगर आपने कोर्ट में कोई केस डालना, you need to engage a lawyer. But MSME समाधान में if you have a very simple case, if you have time, there are ways like you can आप खुद ही अपना केस को देख सकते हैं. Third important reason कि MSME समाधान बाकियों से better क्यों है, इसमें the stipulated time frame किसके अंदर केस खत्म हो जाना है, that is 3 months. Although टिकली 3 महीने नहीं लगते, 3 महीने से काफी ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा नहीं, 6 महीने 8 महीने 9 महीने तक केस खत्म है, बट उससे ज्यादा नहीं. इफ वी सी फॉर अगर हम कमर्शियल सूट की बात करें, दे हैव लिमिटेड देयर टू 2 years, तो उसमें खिंचता तो वो भी 2 साल से ज्यादा है. बट MSME समाधान दे से दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस की 2 महीने से 90 days 3 महीने से ज्यादा खिंचे केस. बट देन अगेन टाइम भी इसमें कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं, इजी टू डू है. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इनके जब भी आप whenever you get a case in your favor, like अगर आपका कमर्शियल सूट में कोई केस आपको आता है, they can obviously go for an appeal. But this case under MSME समाधान, if you have received an order in your favor, in that case, if the other party has to file an appeal, they need to deposit the 75% of the awarded amount, जो कि principal amount से भी ज्यादा हो जाता है. So in such cases where you have the level of pros are बहुत ज्यादा, इसका कोई कौन नहीं, काफी फेवर में है MSME अगर आप if you go for recovery through MSME समाधान. So that is why it is most preferred. And also, like we discussed the jurisdiction part, like civil cases other than MSME समाधान, अगर हम commercial court में जाते हैं, that has to be filed in the jurisdiction of the defendant. In these cases, सारा case है that will continue in your jurisdiction. So जो defendant को जहाँ होगा उसको आना पड़ेगा आपकी एरिया की काउंसिल में to get this matter. So now I was talking about the documents that are required. Documents also have discussed. जो भी आपके transaction related documents हैं, invoices, purchase order, ledger statements, emails, your Udyam registrations, your state, all of those need to be there. इसके अलावा you prepare a brief statement of claim. Statement of claim basically fact sheet stating all of the incident that happened, like in the legal note discussed, something we mentioned like what we do, how we supplied the goods, when we ask for payment, क्या वो सारी चीजें they are all mentioned in the statement of claim. एंड इन सब के साथ जो कंसिलेशन फीस होती है, जो बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, हरियाणा में 3,500, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट्स वेरी लेस, 300-500 तक होता है. यूपी में दे हैव अ कंबाइंड लाइक एक पूरा कंसिलेशन इज फ्री. इन दिल्ली में आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कंसिलेशन इज फ्री है, बहुत नॉमिनल फीस है. व्हाट दे चार्ज इज फॉर आर्बिट्रेशन का क्या स्टेज है आके आऊंगा आपको बताऊंगा. सो नाउ वंस register a case, we submit all the documents to the MSME council. What the council will do is they'll call the parties for conciliation.
The first step, whenever you file a case on MSME Samadhan, like after submission of documents, is conciliation. So conciliation, what they do is they call both the parties. They see if there's a dispute or not. If there's a dispute, they see उसका nature क्या है, उसको resolve कर सकते हैं, नहीं resolve कर सकते. But the main agenda for calling both the parties that they actually create pressure on the buyer, stating that, telling them all the consequences, like if they go for a case, because the interest amount here it's 3 times bank rate, the interest that is that you get awarded. It's also, ये भी एक प्लस साइड है MSME समाधान में केस डालने की, कि आप अगर केस डालते हैं and the awarded amount it's 3 times the bank rate. तो bank rate अभी 6% के आसपास का चल रहा है, तो awarded amount होगा वो that would be 18 times, that would be 18%, 3 times of this 6%. So 18%, that also the interest जो rate है, that is with monthly rest. तो जो awarded amount मिलेगा वो बहुत multifold मिलता है. It's almost like जो credit card companies charge करती हैं, तो effective rate of interest आपका 27% का पड़ जाता है. तो ये सारे all these consequences are told to the buyer, and based on that, in most of the cases, conciliation process में ही case settle हो जाता है. 60-70% matters conciliation settle हो जाते हैं. Wherever there's a dispute, they try to get the issue resolved, and wherever, if the matter is solved, if कहीं किसी भी तरह का कोई settlement होता है, if the settlement is not on the spot settlement, the settlement is based on some future promises, they draw that settlement promise into an MOU and they register that MOU, stating that if the other party is not following that MOU later on, they can obviously restore the case. So there could be 2 outcomes of this conciliation process. First outcome is that if you get the case settled, settlement could be upfront payment or any commitment by the buyer to give the payments. But ऐसे cases में जैसे commitment तो आप कह सकते हैं कि पहले भी तो they defaulted, but here the case would be different. Here they'll draw an MOU, they'll ensure कि आपको checks मिले, और वो उनको उतना बता देते हैं that if again they come, then they will actually have to pay more than what they were supposed to. So in such cases जो यहाँ से जो settlement होती है वो आगे जाके टूटती नहीं है, बहुत कम cases में टूटती है. In case if the matter is not able to settle and not get settled, settlement नहीं हुआ, इसके 2 reasons हो सकते हैं. First reason could be the party did not show up. अगर दूसरी पार्टी आएगी तो settlement होगी कैसे? So if the party does not show up, and that case the matter does not get in settlement, in that case उसको arbitration भेज दिया जाता है, उस पार्टी को ex party proceed कर दिया जाता है. उनकी presence की क्योंकि केस तो आगे चलानी है. If you want to get your payment, then you need to have that arbitral award with you. तो उसके लिए they proceed them the ex party, or if the dispute and they think that okay we can't settle this dispute ourselves, they refer it to arbitration. So for arbitration they give it to mostly the retired judges. Like in most of the councils, they have retired judges of their area on their panel. So they look into the matter, they try to get this resolved. But in all of these cases, arbitration की भी जो state, they keep that time frame in their mind that they actually want to get the resolution done within 3 months. 3 months जैसे आपको बताया एक्ट में states 3 months, 3 months से 6 months, 8 months तक usually होता है, उससे beyond नहीं खिंचता मैटर आपका. So now when the matter is in arbitration जो एक यूजुअल आर्बिट्रेशन होती है MSME आर्बिट्रेशन, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है. काफी जो बेसिक स्ट्रक्चर आर्बिट्रेशन का वो तो सेम रहेगा, but difference are that the arbitration fees is not as per the arbitration schedule, because if we go for a regular arbitration, not an MSME arbitration, उसमें जो schedule है that is तो arbitrator की फीस काफी ज्यादा होती है. Here very nominal fees is charged. Thus the cases में UP में it's limited to 10, 20, 30,000. 50,000 से limited है. 50,000 तो तब है जब आपका 2-3 करोड़ का, और किसी मोड ऑफ रिकवरी में हम जाएंगे तो इस बहुत ज्यादा लगती है. बट यहाँ पे arbitration fees is very much limited. So whenever the will go for will be there for arbitration. यहाँ पे पहले तो like we said कि हम अपने फैक्ट स्टेट करेंगे, सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट होगी, एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, दूसरी पार्टी की जो डॉक्यूमेंट्स है देल से कि हमें पेमेंट क्यों हम नहीं देने, क्या डिस्प्यूट है क्या नहीं, उसके लिए डेबिट नोट्स हैं, कोई ईमेल्स हैं, कोई रिजेक्शंस हैं, दैट दे विल कम्युनिकेट. Stage 2 in the arbitration is basically stage submission of witnesses. हमारे कोई witnesses हैं जिनको क्रॉस एग्जामिन करना है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और प्लेस करना है, हमें उनसे कोई डॉक्यूमेंट सीख करना है, वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस में हम ले लेते हैं. जब सारे एविडेंस, सारे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जाम जाता है, आफ्टर दैट कम्स फाइनल आर्गुमेंट्स. यूजुअली जैसे कोर्ट में होता है, ये कोर्ट में भी मोस्टली स्टेजेस तो ये 3 ही होते हैं, बट दीज टेक इयर्स. Whenever we talk about arbitration under MSME, all of these stages are quite quickly. हफ्ते की, एक हफ्ते से भी कम की dates they give you, and so that to ensure that the matter is resolved within that time frame, that is
that according to them is 3 months, but practically जिसमें लग जाते हैं. अनमोल जी नमस्ते. नमस्ते मेरी सर. आवाज आ रही है अनमोल जी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी. सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, और कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके ना होने से हमको अप्रोच ही नहीं करना चाहिए कि ये काम होगा ही नहीं? सर अगर आपके पास जीएसटी इनवॉइसेस हैं और लेजर हैं तो 90% आपका केस उससे हो जाता है, सिर्फ जीएसटी इनवॉइसेस और लेजर पे, बिकॉज आपके पास इनवॉइसेस हैं, जीएसटी इनवॉइसेस तो दूसरी पार्टी ने उसको क्रेडिट किया होगा. ठीक है ठीक है. जीएसटी इनवॉइस, रोड परमिट अगर है गुड इनफ होता है इतना केस क्रिएट करने के लिए. रोड परमिट आप ईवे बिल की बात करें तो वो होगा ही होगा अगर आपने गुड इनवॉइसेस, और मैं आपको बता रहा हूँ इनवॉइसेस और यही सफिशिएंट होते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी कॉल कर ली जाती है उनकी जीएसटी रिटर्न, तो उनकी परचेज में तो शो हो ही रहेंगे आपके इनवॉइसेस. ठीक है ठीक है 90% केस आपको इन दो डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे हो जाता है. ठीक है सर. क्या जैसे वैल्यू अगर छोटी होती है 25-50 हजार लाख रुपए तक की, तो उसमें भी मतलब ये 3 या 6 महीने लगाते हैं या इंस्टेंट कुछ फैसला आ भी जाता है उसमें कई बार? सर जहाँ पे अमाउंट इतना कम होता है ना, वहाँ दूसरे जो बायर है उसी पे इतना प्रेशर बना देती है काउंसिल की, इतने छोटे से अमाउंट को भी यहाँ लेके आ रहे हो, आप इतने चक्कर लगाओगे, पेमेंट ही क्यों नहीं कर देते. तो छोटे अमाउंट्स होते हैं उसमें तो और टाइम लगता है, वो तो पहले दूसरी हियरिंग में ही कंसिलेशन स्टेज पे सेटल हो जाता है मैटर. सर हियरिंग जैसे अभी मैं फॉर एन एग्जांपल एक कोई पार्टी सेलर है बॉम्बे में बैठा है, बायर है वो तमिलनाडु में बैठा है फॉर एन एग्जांपल, तो कोर्ट कहाँ पे मतलब प्रेजेंट कहाँ पे होना पड़ता है? सर आपकी एरिया की काउंसिल, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं समझिए अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ सर. आप अहमदाबाद से बात कर रहे हो ना, अहमदाबाद में गुजरात MSCFC काउंसिल बनी हुई है, तो ठीक है. आपको भी वहीं जाना होगा, दूसरी पार्टी को भी वहीं जाना होगा इस केस मतलब ऑल द वे अगर समझिए दूसरा पार्टी है तो उसको ऑल द वे अहमदाबाद का धक्का तो खाना ही पड़ेगा. अहमदाबाद का धक्का उसको खाना पड़ेगा और वो उस धक्के को अवॉइड भी नहीं कर सकता. अगर वो नहीं आएगा, एक्स पार्टी अवॉर्ड हो जाएगा, उनको और महंगा पड़ता है बाद में. ठीक है ठीक है ठीक है. सो आर्बिट्रेशन इज एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं. जैसे आपने बताया था आर्बिट्रेशन की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अवार्ड है वो MSME के फेवर में ही जाता है. तो लॉज इस तरीके से बनाए हुए हैं, अगर 15 दिन के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज ही नहीं हुआ होगा, तो कोई कम्युनिकेशन होगी नहीं डिस्प्यूट की, तो इवन द आर्बिट्रेटर गो बियॉन्ड द लॉ. लॉ इज सच कि इसमें जो रिलीफ है वो MSME को इन मोस्ट ऑफ द केसेस मिल ही जाता है, अनलेस कॉन्ट्ररी केस हो, कोई डेबिट नोट्स टाइमली उन्होंने रेज कर दिए हो, कुछ अब नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में केस भी जेन्युइन ही है. कोई पार्टी इज क्लेमिंग देयर अमाउंट, वो यहाँ तक आ रहे हैं तो जेन्युइन केसेस ही हैं. तो इन सच केसेस में जो अवार्ड होता है वो मोस्टली MSME के फेवर में पास होता है. ये अवार्ड आने के बाद आपने क्या करना है हम ये देख लेते हैं. अब MSME की जो अवार्ड्स हैं वो हम दो तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं. एक तो बिकॉज MSME की आर्बिट्रेशन, बट इट्स आर्बिट्रेशन अवार्ड, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड या तो आप थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जैसे कोर्ट की डिक्रीज को हम एग्जीक्यूट कराते हैं. कोर्ट की डिक्री भी मिल जाने के बाद ये नहीं है कि उसी कंप्लायंस उसी टाइम हो जाती है, और इंश्योरिंग दोस कंप्लायंस हमें एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है. सेम इज द केस विद द MSME आर्बिट्रेशन. बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है दैट हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू इसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. सपोज अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख था आफ्टर आर्बिट्रेशन और सारी कॉस्ट वगैरह जो भी आपने इनकर की है आपकी हैरेसमेंट मिला के 8.5 लाख की जो डिक्री पास होगी आर्बिट्रेशन अवार्ड बाय द आर्बिट्रेटर, जो कुछ केसेस में MSCFC काउंसिल करती है, जो भी काउंसिल करेगी या वो पैनल आर्बिट्रेटर करेगा, वो एरिया टू एरिया करता है. तो जो भी करेगा लास्ट में आपको जो अवार्ड मिलेगा दैट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय द वे ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अगर आप उस जहाँ पे बायर लोकेटेड है उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप यहाँ से भी लेटर इशू कर सकते हैं या वहाँ जाके भी कर सकते हैं, वहाँ किसी को अपॉइंट करके भी कर सकते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस बायर की वो प्रॉपर्टी को 6 एक्सटेंड तक अटैच कर देगा जब तक आपकी पेमेंट नहीं आ जाती. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी काफी सीरियस हो जाता है दूसरी पार्टी के लिए. अटैचमेंट का मतलब ये कि बस कि ठीक है उन्होंने रिकॉर्ड पे कर दिया. अटैचमेंट का मतलब है कि वो ये सील कर सकता है अगर वो अपनी इफ दे डोंट मेक द पेमेंट, तो उसमें भी लास्ट उनको बताया जाता है. बट यहाँ पे अब आपकी जो भी सेटलमेंट होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होगी, आप अवार्ड अमाउंट पे आ गए हो. तो जो नेगोशिएशन होती है दैट अब वो अवार्ड अमाउंट पे होती है, बिकॉज आपने इतना पूरा प्रोसेस निकाला 6-8 महीने का, आपने इसमें यू टुक पार्ट ऑल ऑफ दैट. तो इन दैट केस अब जो आर्बिट्रेशन उसकी एग्जीक्यूशन कैसे की उसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच है. इसलिए इनिशियली हमने कहा था कि दैट यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर, तभी आप इस प्रोसेस में यहाँ तक जाके उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करा पाओगे. अगर आप इफ यू डोंट नो कि उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके पास जो
जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ उसकी रेंटेड प्रीमाइसेस की थी, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. Also, like if you have their Aadhaar card, your PAN card, you can get information about their property as well. So one is this way. Second way is कि आप अब कोर्ट को अप्रोच करेंगे afterward just for the execution purposes, because court has certain powers the district collector does not have. So what court can do is that court can freeze bank accounts, and court can also order a civil imprisonment for the buyer. तो ये दोनों प्रोसेस में आप साथ में जा सकते हैं. पर यहाँ पे कोर्ट में जाने का पर्पस ये नहीं केस दोबारा से खोलेगा. केस का पूरा पर्पस सब रहेगा जस्ट टू एग्जीक्यूट द अवार्ड, नॉट कि दोबारा से मेरिट ये तो फलाना ने गुड्स ठीक नहीं दिए थे या हमारे पास सर्विसेज सही से नहीं थी. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. अब है कि जो कोर्ट ने अवार्ड जो एमएसएमई ने अवार्ड पास किया है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी. तो ये दो तरीके हैं एग्जीक्यूशन कराने के. एंड नाउ दैट वी डिस्कस्ड, अब किसी के कोई डाउट अगर एमएसएमई के रिस्पेक्ट में तो वी कैन डिस्कस दैट, बिकॉज़ टाइम भी हमारे पास कम रहेगा. लेटर ऑन वी कैन, आई जस्ट हैव वन थिंग टू कवर कि आपके प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं कि आपकी पेमेंट आज. बट एमएसएमई से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क राइट नाउ. मैं हेलो. हेमिल जी सर आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स जो भी है. हाँ हेलो सर, इट वाज वेरी गुड टू लिसन यू. मैंने अभी समाधान एमएसएमई समाधान में रजिस्टर करवाया है. वहाँ से मुझे वो लेटर भी आया है कि 15 दिन में आपको या एमएसएमई अहमदाबाद में आरपीएडी से सब कागज भेजने का है. तो मेरे को एक पूछना है, अगर ये 15 दिन के अंदर हम नहीं भेज पाए तो क्या फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि ये फिर बंद हो जाता है? सर बंद नहीं होता. 15 दिन आपको इसलिए कहा गया था कि आप उसको जल्दी भेज दें. बंद तो नहीं होगा. बंद तो अगले 2 महीने तक भी नहीं होगा. बट जितनी जल्दी आप उसको करेंगे, कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उतनी जल्दी आपका केस स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी आएगी. क्योंकि मेरा डिले होने का एक वजह ये कि मेरा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में है ना, जो एनआईसी कोड है वो थोड़ा गलत है. इनका कोड जो हमारा जो होता है ना वो नहीं है, दूसरा कोड है, तो वो पहले चेंज करना है. ओके. तो वो ये कि आप केस दोबारा भी डाल सकते हैं, बट देन अगेन फिर जो बायर है दैट ही वो डिस्प्यूट रेज करते हैं कि जिन्होंने तो पहले केस डाला था वो डिस्मिस हो गया, अब नया केस डाल रहे हैं. तो बेटर है कि आप केस डालने से पहले सारी फॉर्मेलिटीज कर लें. केस डालने के बाद आप उसको डिले करेंगे तो फिर दैट विल गो अगेंस्ट यू. तो पहले लेकिन वही प्रॉब्लम वही है कि जो एमएसएमई में लेटर है ना, तब लंबा लिस्ट दिया कि इतना 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 कर देने का है. सर वो लिस्ट तो मैंने भी शेयर कर दी. लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांगते. वो मांगते क्या है आपसे? ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगते हैं. वो तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे तैयार होने चाहिए. वो तो सब है, लेकिन वो सीए सर्टिफिकेट भी मांगते हैं. और ये जो आपने बोला ना एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का, उसमें जो एनआईसी कोड है, वो बहुत प्रिकॉशन में मैंने आपको कहा था ना कि क्या स्टेप्स आपको लेने. उसमें ये आपको पहले इंश्योर करने की चीजें पहले से तैयार हो. अब ये करेंगे तो वो डिले करेगा. और जो आप कह रहे हैं कुछ काउंसिल्स में व्हाट दे आस्क फॉर इज कि जो लेजर स्टेटमेंट है वो कहते हैं सीए से टेस्ट करवा के लाओ. वो पहले मांगा करती थी, बिकॉज पहले क्या था कि सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सारी चीजें होती थी, तो वो लेजर पे डिफरेंशिएशन रहती थी उसमें. लेकिन आजकल तो जीएसटी इनवॉइसेस हैं, सबके लेजर में वही है, तो ऑल्दो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है. बट हाँ, अगर सीए से टेस्टेड मांग भी रहे उसमें भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. आप कोशिश करो 15 दिन के अंदर अंदर दे दो उनको. ओके सर, थैंक यू. और किसी का कोई डाउट हो? कैन आई? यस सर, निशांत जी आप पूछ सकते हैं. सो मैंने वही ऑनलाइन सो रजिस्टर किया था, बट उसके बाद का प्रोसीजर आई थिंक सो आई मिस्ड इट. आप कहाँ से बात कर रहे हो? चेन्नई से सर. चेन्नई से बात कर रहे हो? तो बेसिकली आपको अपनी काउंसिल में ना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने, तभी काउंसिल केस आपको आगे बढ़ा पाएगी. So basically what we had submitted online and whatever they're asking वो दोनों सबमिट करना चाहिए. वो दोनों सबमिट करने हैं. इफ देयर इज अ सर्टेन काउंसिल फी दैट हैज टू बी पेड, तो वो आप देख लेना कि अगर काउंसिल की कोई फीस है, क्योंकि हर काउंसिल की होती कुछ ना कुछ 300 400 500. मुझे एक मेल आया था, बट मुझे वो मेल थोड़ा फेक लगा था, सो आई इग्नोर्ड इट. सो आई गेस कि कुछ काउंसिल्स क्या करें, अभी भी ना अपनी जीमेल वाली आईडी यूज करके भेज देती है, तो हम बट कई बार फेक होता नहीं है. आप ईमेल पे कॉल करके देखो, जो ईमेल नंबर दिया होगा उसमें कॉल करके देखो, वो जेन्युइन हो सकता है. मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं फेक होगा. वो जेन्युइन होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करो तभी केस आगे स्टार्ट होगा, वरना ऐसे स्टार्ट नहीं होगा. ओके, ठीक है. और किसी कोई डाउट? Good evening, Almo sir. Good evening. Sir, I have a question regarding the appointed day. Mm-hmm. Sir, please correct me if I am wrong.
what I understood is that if the buyer did not respond to the seller within 15 days regarding the rejection of the goods, then the good will be deemed accepted. Yes. And अगला दिन अपॉइंटेड डे होगा. हाँ जी. बट सर मैंने देखा है कि कंपनी जैसे इनवॉइसेस रेज करती हैं सर, उन पे कुछ कंडीशंस होती हैं ऑलरेडी. लाइक जिस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ उसमें हमारे इनवॉइस पे ये कंडीशन रहती है दैट इफ द बायर डिड नॉट रिस्पॉन्ड द सेलर regarding the rejection of the good within 7 days, then the good will be deemed accepted. So, sir, will that provision will permit this act? Actually, MSME Act जो है ना, it has a superseding effect. कि कोई रिटन कोई भी अग्रीमेंट है तो उसको सुपरसीड करेगा. तो कुछ चीजें बेनिफिट है, कुछ चीजें बेनिफिट में नहीं है. बट देन ऐसे मैटर्स में अगर आप एमएसएमई में केस डाल रहे हैं तो यू हैव टू गो विद द डेफिनेशन जो एक्ट में मेंशन्ड है. तो एक्ट में अगर 15 दिन मेंशन्ड है तो 15 दिन ही गिनेंगे. they won't consider 7 days. तो 15 दिन ही गिना जाएगा उसमें. अगर आपकी से पेमेंट टर्म्स है, आपकी अगर 30 दिन की पेमेंट टर्म्स है बट या 60 दिन की पेमेंट टर्म्स है बट एक्ट सेज कि 45 दिन से ज्यादा नहीं, तो 45 दिन ही गिनते हैं ना. तो उस केस में एक्ट सुपरसीड करेगी आपकी कोई भी रिटन अरेंजमेंट है उसको. ओके सर, थैंक यू. We would request the members if they have any queries, then they can please ask. We have kept a few minutes for this question sessions. So how can we find out the location in the region? किधर है for document submission? आपने जब केस डाला होगा ना तो उसकी स्टार्टिंग में ऊपर एक्नॉलेजमेंट जो काउंसिल का एड्रेस आ रहा होगा लिखा हुआ, वही आपकी काउंसिल है, वहीं जाके अप्रोच कीजिए. ओके, वो जो नोटिस आया होगा उसमें लिखा होगा. नोटिस आएगा उसमें. काफी स्टेट्स में मल्टीपल काउंसिल्स हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, काफी कम स्टेट्स में एक ही काउंसिल है. तो आपको देखना पड़ेगा आपकी स्टेट में कितनी काउंसिल. अगर बहुत सारी काउंसिल है तो आपके जो नियर बाय होगी वही आपकी जुरिसडिक्शन है, वरना तो आपकी अगर वो ऊपर जो एड्रेस है वही मेन है, वहीं अप्रोच कीजिए. हेलो, हाँ जी. गुड इवनिंग सर, अनुराग बात करो नोएडा से. हाँ जी अनुराग जी. और सर हमारा कंसर्न अब इसमें जैसे हमारी डिस्कशन चली परचेज एंड सेल्स की, उससे रिलेटेड तो नहीं है बट हमारा क्या इंश्योरेंस का क्लेम चल रहा है. अच्छा. हमारी हाईको मशीन थी, एज हम ट्रेडर काम करते हैं तो हमारी मशीन थी गुजरात से निकल के हिमाचल की तरफ जा रही थी. रास्ते में वो गाड़ी पलट गई. अच्छा. कंपनी की इंश्योरेंस थी और हमने क्लेम भी डाला. पिछले साल की बात है मई में. तो हमने पूरा प्रोसेस चलाया और आज की टीम में उन्होंने क्या किया, उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. बट उन्होंने स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया कि क्यों. बस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती क्लेम कर दिया. 2.5 करोड़ की अमाउंट है, प्रीमियम 4,000 रुपए के आसपास है. तो हम इसमें एमएसएमई में जा सकते हैं क्या इसके रिगार्डिंग? सर ये वाला केस तो एमएसएमई का है नहीं. एमएसएमई का केस सिर्फ डिलेड पेमेंट रिकवरी, जहाँ पे आपकी आपने गुड्स एंड सर्विसेज दी उसकी पेमेंट ना आई हो, वही केस यहाँ पे आ. और कोई केस नहीं आ सकता. अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ है तो आईआरडी में फॉल तो करते हैं ना, ऑल करते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन वो नहीं, ये सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को गवर्न करते हैं जहाँ पे आपने गुड्स एंड सर्विसेज किसी को रेंडर की हो, वो ना आपको मिली हो. कोई भी पेमेंट नहीं, इंश्योरेंस अमाउंट की पेमेंट नहीं आ सकती इसमें. पेमेंट आएगी जहाँ पे सर्विसेज सप्लाई हो. सर इसके लिए तो आप या तो देखिए कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, या तो आप आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पर करिए. वो भी दोनों जो है आपका रेजोल्यूशन वहां से जल्दी निकल जाएगा ऐसे मैटर्स में. अगर आपकी जो रिजेक्शन है इंश्योरेंस क्लेम की वो बहुत डिटेल नहीं है, कुछ रीजन नहीं दिया उन्होंने, तो आपका उसमें कवर हो जाएगा. आप वहां देख लीजिए. एमएसएमई में नहीं आ सकता ये मैटर. ओके सर, थैंक यू. रॉबस से सर पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चंस अनमोल जी से. रॉबस इंडिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन सर. हेलो. हाँ जी सर. हाँ जी. हाँ सर, एक और कुछ भी केस है, एक मिनट मैं इसको, कुछ केस और भी है हमारे ऐसे कुछ है. एक दो मशीन हमने डिस्पैच की किसी को, उन्होंने मशीन इंस्टॉल कर ली प्रॉपर्ली, ठीक है, और उसमें ये हुआ कि जीएसटी का अमाउंट हम आफ्टर इंस्टॉलेशन देंगे, ठीक है. मशीन इंस्टॉलेशन हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं दी है. दे आर यूजिंग द मशीन प्रॉपर्ली. वी आर गिविंग सर्विस आल्सो बिकॉज ऑफ फॉर गुड रिलेशनशिप के हिसाब से. तो इस तरह के केस को इसमें हम कर सकते हैं. हाँ सर, ये केस आप कर सकते हो. और आप बता, फिर इसको आपको टाइमली भी करना पड़ेगा क्योंकि आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, वो अलग, वो इसमें काउंट नहीं होगी. आपको 3 साल के अंदर केस डालना अगर आपने मशीन सप्लाई की उसके.
अगर आपको पेमेंट ओके, नहीं तो आ रही 30 साल का है हमारा आता है फिर ये केस। अनुराग प्लीज चेक इट। ओके सर, ओके, दैट्स ओके, थैंक्स। अनमोल जी, हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। अगर हम जो नोटिस या वकील के नोटिस भेजते हैं और पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है उसको, रिटर्न कर देती है, तो फिर केस आगे बढ़ सकता है कि कैसे होता है? केस तो आगे बढ़ सकता है, बट उस केस में ना आप क्या कर सकते हैं, अगर वो रिसीव नहीं करी, व्हाट्सएप तो यूज कर ही रही है ना, व्हाट्सएप से भेज देंगे, डबल टिक आ गया, वो भी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनकी ईमेल, व्हाट्सएप, हर तरीके से जाएगा, नोटिस तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। और अगर वो नोटिस, अगर मैं कह रहा हूँ बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और वो पोस्ट को वापस कर दे, तो उसको भी माना जाता है कि उन्होंने देख लिया, क्योंकि उसमें रीजन आजकल आ जाता है लिखा हुआ कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया या एड्रेस गलत है। तो अगर लेने से इनकार है तो ये चीज वैलिड है, अगर एड्रेस वगैरह मैच नहीं करे, इस रीजन से आया है, तो फिर ये माना नहीं जाएगा कि उनको नोटिस मिला है। पर व्हाट्सएप माना जाएगा? व्हाट्सएप माना जाएगा, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ गया माना जाएगा, कंसर्न पर्सन को भेजा और तो। ईमेल माना जाएगा क्या? ईमेल भी माना जाएगा। ईमेल भी आजकल ऐसे एक टूल आ गया है जहाँ पे यू कैन ट्रैक कि उन्होंने रिसीव किया है कि नहीं किया, तो ईमेल वैसे भी माना जाता है। अगर उनको वो नहीं भी यूज करे वो टूल आप, बट अगर उनको ईमेल भेजी आपने, बाउंस बैक नहीं किया, तो माना जाता है। मैंने सुना है कि ये केसेस अभी बहुत दिन से पेंडिंग पड़े लोगों के, अभी तक आप जो बोल रहे हैं 8-9 महीने में हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सालों से पड़े हुए। आप कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो आप? मुंबई। बॉम्बे में भी सर 2 काउंसिल्स हैं वहाँ पे, आपको मैं सही बताऊं, बट ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि बहुत से नहीं क्लियर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी मतलब इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो हियरिंग्स काफी जल्दी आती है। वहाँ क्या है कि वहाँ पे आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन दोनों काउंसिल, मतलब दोनों प्रोसेस काउंसिल ही हैंडल करती है। तो मैं भी थोड़ा टाइम में लग रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोसेस ये है कि कुछ केसेस में आर्बिट्रेशन है वो रिटायर्ड जज को भेज देते हैं, बट महाराष्ट्र में जो काउंसिल है वही कर रही है दोनों चीजें। तो मैं भी थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि नॉन रिस्पॉन्सिव है कि आपने केस डाल दिया और आपको पता ही नहीं केस क्या चल रहा है, सालों साल निकल गए, ऐसा नहीं है। डेट्स तो पढ़नी है, महीने 1.5 महीने की बाद में डेट्स तो पड़ती है वहाँ पे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी कोई डाउट हो? मेंबर्स अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है सर, डाउट्स? अनमोल जी, अभी तो किसी का डाउट्स नहीं है, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ऑल राइट। तो हमने सारे मोड्स डिस्कस कर लिए, हम कैसे कैसे पेमेंट हम रिकवर कर सकते हैं। अमोरी सॉरी, मैं म्यूट नहीं हो पाया था। एक मुझे डाउट था और जनरली। हाँ जी बताइए सर। हाँ, ये जो अभी केस करते हैं कि दूसरे स्टेट में मशीन हमारी है और हम लोग सपोज नोएडा में हैं, तो इसके लिए कहाँ पे जाएगी? पोर्टल में डालना है? ये कोई मैटर नहीं करता कि कस्टमर कहाँ का और हम कहाँ से? हाँ सर, कस्टमर इस पे आपकी लोकेशन डिपेंड करती है कि आपकी एमएसएम में रजिस्ट्रेशन कहाँ की है। तो अगर आप नोएडा में बिलोंग कर रहे हैं तो आप केस डालेंगे, आपकी काउंसिल मेरठ में, आपकी काउंसिल जो लगेगी वो मेरठ में लगेगी, दोनों पार्टीज को वहीं जाना पड़ेगा इस केस में। ओके सर, दैट्स गुड, थैंक यू। So now that we know all the modes by which we can recover the payment, हम precautions की बात कर लेते हैं कि क्या हम steps लें कि वो नौबत ही ना है कि हमारी पेमेंट डिले हो, और अगर डिले हो तो हम उसको एक्चुअली रिकवर कर पाए। फर्स्ट इज दैट, अगर हम इनवॉइसेस की बात करें, आपने देखो काफी इनवॉइसेस में देयर आर टर्म्स एंड कंडीशन जो इनवॉइसेस पे मेंशन कर देते हैं, व्हिच इज अ गुड वे। सो इफ इन द इनवॉइस यू मेंशन क्लियर टर्म्स ऑफ पेमेंट, योर इंटरेस्ट रेट, योर पेमेंट शेड्यूल, एवरीथिंग लाइक दैट, सो इन दैट केस it becomes easy for you to later enforce them, क्योंकि इनवॉइसेस में 3 चीजें तो जरूर होनी ही चाहिए आपकी। यू मेंशन कि इनवॉइसेस कौन सी जुरिडिक्शन में लाई करेंगे, यू मेंशन कि ऑल द डिस्प्यूट्स विल बी सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन ऑफ फरीदाबाद, दिल्ली, जहां पर भी आप बिलोंग करते हैं। सेकंड इज आप यू मेंशन कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, आप उसमें लिख दो कि 24%, 18% के हिसाब से रहेगा अगर इस दिन इतने डेज में पेमेंट नहीं हो जाती, 7 दिन, 30 दिन। ऑल्दो एमएसएमई एक्ट अप्लाई करेगा, नहीं भी लिखा तो भी अप्लाई करेगा, बट ये अभी से इनवॉइसेस पे लिख देने में दूसरी पार्टी के ऊपर इट हैज अ डेटरेंट इफेक्ट। एंड बाकी और भी कोई टर्म्स है आपकी सब्जेक्ट की कि आप
वो वन सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, या कोई अगर डिस्प्यूट है कितने दिनों में उनको बताना डिस्प्यूट के बारे में. सो ऑल ऑफ दोस टर्म्स इट इज बेटर यू राइट देम. बट ये विद रिस्पेक्ट टू कितने डेज के अंदर वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने दिन में, all of that should be mentioned in the invoice only. Also, always keep documents complete and up to date, including your EV bills, challans, tax invoices, acknowledgement receipts. जो भी गुड्स आप सप्लाई आप उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें किसी पार्टी को सप्लाई करो तो प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिए, ताकि उनके सारे EV बिल्स जो भी उनके हैं, कोई आपकी ट्रांसपोर्टर की कॉपीज हैं, ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, GR बिल्स हैं, जो भी उन सबको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट अपने पास रखेंगे तो ठीक रहेगा. लेटर में अगर आप केस में जाते हैं आपको कोई चीज नहीं होती तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा. जैसे कि मेरे पास वो रिकॉर्ड गुम गए, वो रिकॉर्ड गुम गए का मतलब ये कि आपके पास वो कभी थे ही नहीं. तो इससे बेटर ये है कि आप यू हैव दैट इन योर फिजिकल फॉर्म या ई फॉर्म कहीं ना कहीं तो अपने पास रखिए, ताकि केस में जब भी आपको यूज करना हो आप रेडिली अवेलेबल पड़े हो. ये सोच के चलिए कि कोई भी केस, कोई भी किसी को भी आप क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं तो लेटर ऑन दैट कैन बिकम अ केस. Third thing is that in the initial I mentioned the KYC form. तो कोशिश कीजिए कि वैसा कोई फॉर्म अपने बायर से भरवा पाए, किस एक्सटेंट तक आप भरा सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट यू शुड हैव दैट. और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी रखिए कि उनको मेंशन कर दीजिए कि कभी भी आपका अगर कोई एड्रेस चेंज होता है, कोई अकाउंट चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है तो आपको हमें बताना पड़ेगा. जैसे बड़ी कंपनीज करती हैं, उसी को माइक्रो फॉर्म में अगर आप अपने कंपनी में एस्टैब्लिश कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. फोर्थ स्टेप इज कि आप सारे सिक्योरिटी चेक्स को अपने पास, अगर आप सिक्योरिटी चेक्स रखिए, सिक्योरिटी चेक्स को रखने का एक बेनिफिट हमारे पास ये रहता है कि हम नेगोशिएबल में केस डाल सकते हैं. कि अगर एमएसएमई में हम बात करते हैं कि अगर हमने केस भी सिविल केस डाल दिया तो दूसरी पार्टी नहीं आती तो केस एक्स पार्टी होता है, ड्यू प्रोसेस लेता है, जो भी रोल है अरेस्ट का या प्रॉपर्टी अटैचमेंट का वो आता है. चेक्स वाले मैटर्स में ऐसा नहीं है. चेक्स वाले मैटर्स में अगर आपने केस पार्टी अपीयर नहीं हुई तो उनके सीधा उनके अवेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट्स होंगे. So in such cases, having a security and using this mode to recover your payment, it becomes very effective. Because in some certain places, like I was talking about, like in places like Bihar, Jharkhand, here the local laws are not that strong. Even if we later on we have an MSME case, we have an award, we want to get it executed through the DM. तो वहाँ वो DM का वो प्रोसेस है वो वैसा है नहीं, और उनकी जो पार्टी है उनके अपने एरिया में थोड़ी तो होल्ड रहती है. बट ऐसे केस में जहाँ पे चेक बाउंस का मैटर है आपका, वहाँ तो क्या है कि जब आप केस आप अपने एरिया में डालेंगे, अवेलेबल वारंट्स होंगे, नॉन अवेलेबल वारंट्स होंगे, तो पुलिस तो यहीं की जाएगी उनको उठाने के लिए. तो इन सच केसेस सिक्योरिटी चेक्स का जो बेनिफिट है वो बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. बट देन अगेन वो भी है लिमिटेशंस में कि सिक्योरिटी चेक्स काफी बार मिलते भी नहीं है, और जो चेक बाउंस की जो कोर्ट्स हैं दे टेक देयर टाइम, 3 साल 5 साल रहते हैं इन सच केसेस. सो हैविंग दैट सिक्योरिटी चेक्स ऑलवेज हेल्प. जहाँ पे दूसरी कंपनी, अच्छी कंपनीज हैं या फिर उनको है कि ओनर, उनको पता है कि जिसकी साइन उसी को आना पड़ेगा हर डेटों पे, तो फिर वो उनके लिए तो पेमेंट आ ही जाती है ऐसे मैटर्स में, सेटलमेंट किसी ना किसी तरीके से. अगेन एज ए मेंशन कि अगर फॉलो अप होगा, ईमेल्स वगैरह टाइमली जाएंगी, तो काफी कंपनीज हैं वो एटलीस्ट दे विल कीप यू ऑन प्रायोरिटी फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, कि चलो ठीक है इनकी ईमेल्स बताते हैं, इनको हम पे कर देते हैं. तो ये इसकी माइंडसेट रहता है, जैसे हमारा माइंडसेट है ऐसे में हमें भी किसी की पेमेंट देनी है तो जिसकी ईमेल ज्यादा आते हैं भी हम सोचते हैं का थॉट दिमाग में ज्यादा आता है कि चलो इनकी पेमेंट कर देते. तो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स लीगली आल्सो एंड अदरवाइज आल्सो, लाइक वी डिस्कसिंग. और भी कुछ चीजें हैं जो हमें जब भी हम किसी को सप्लाई करते हैं तो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. जैसे कि हम अगर हमारे पास सारी जो हमने अभी चीजें डिस्कस की हैं अगर हमारे पास होंगी तो केस डालने में या पेमेंट रिकवरी करने में हमें हेल्पफुल रहती हैं. किसी के अगर अब कोई कुछ डाउट्स हो तो वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ. Presentation was still here only. We request the members to ask their questions if they have queries in their mind. अगर फ्यूचर में किसी का भी कोई फ्यूचर में कोई क्वेरीज हो देन आई एम शेयरिंग माय कांटेक्ट डिटेल्स हियर ऑन द स्क्रीन इफ इट्स विजिबल. सो किसी का कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द रिकवरी थ्रू एमएसएमई समाधान ऑन एनी अदर मोड, यू कैन डिस्कस इट. माय मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड.
and still if anyone has their doubt, I'm still here meeting में भी, we still have time. किसी कोई डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिले पेमेंट या कोई प्रैक्टिस हो, कुछ इफ वांट टू डिस्कस एनीथिंग आप डिस्कस कर सकते हैं. किसी का डाउट आया मैम? ये Yes, sir. Sir, Rupa Sardar, she can ask the question. Are you able to hear? Rupa Sardar? रूपा सरदार हमारे साथ हैं अभी? आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल म्यूट में हूँ. Yes, you can ask the question. मैम शायद वो म्यूट पे हैं. हमने तो म्यूट नहीं किया उनको कोई. No. अनम्यूट बट अनेबल टू अनम्यूट. ओके मैम, अगर आप टाइप करके लिख सकते तो हम टाइप करके पढ़ लेते हैं अगर आप या अनम्यूट करने की कोशिश. Ma'am, you have to unmute from your side only. You have to just click on the mic and then you will be unmuted. If both the parties should register, में से भी नो मैम, इसमें सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, दूसरी पार्टी का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है. और इनफैक्ट दूसरी पार्टी जरूरी भी नहीं है, दूसरी पार्टी कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन हो, कोई पीएसयू हो, कुछ भी हो, यू कैन स्टिल फाइल अ केस. इनफैक्ट जितनी बड़ी कंपनीज हैं उतना ही उनके लिए मुश्किल होता है फॉर टू फाइट एन एमएसएमई केस, क्योंकि इवन एज पर द कंपनी लॉ कंप्लायंस जो भी पेमेंट वट एवर दे आर एक्सीडिंग बियॉन्ड 45 डेज उनको इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना होता है. आई डोंट नो आपको, आप कंपनी के बारे में पता ही नहीं पता. सो जो बड़ी कंपनीज है वो प्रोविजन बना के उसको राइट ऑफ कर देती है, बट वो प्रोविजन वो बनाती हैं कि दैट इज देयर कंप्लायंस. तो जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही इफेक्टिव रहता है एमएसएमई का केस. एंड ऑल्सो कोई पब्लिक सेक्टर उनके लिए भी दे हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट लिस्ट की कौन सी एमएसएमई जिनकी पेमेंट नहीं कर रहे, और वो बहुत इनिशियल स्टेज पे सेटल हो जाते हैं. तो सिर्फ आपका एमएसएमई होना जरूरी है, दूसरी पार्टी का एमएसएमई होना जरूरी नहीं है इस केस में, अगर आपने केस प्रोसेस करना है एमएसएमई समाधान में. तो अनमोल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी. सर ये जो आज डिस्कशन हुआ काफी फ्रूटफुल था, काफी अच्छा था, काफी कुछ पॉइंट्स में क्लियर हो गए जो हमें नहीं पता था इसके अंदर. तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट नहीं करता हमारी, तो अभी कोई इनकम टैक्स का नया प्रोविजन आया ना, जैसे उसको जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा उसका बिल का, तो जीएसटी का आउटपुट नहीं मिलेगा अगर वो पेमेंट नहीं करता 45 दिन के अंदर. ऐसा भी कोई प्रोविजन है? सर ऐसा प्रोविजन नहीं है. मतलब आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने जीएसटी बिल काट दिया तो उसका वो बेनिफिट नहीं ले सकता, वो बेनिफिट तो उस तक चला ही जाता है. तो ऐसा नहीं है. बट देन अगेन आप अगर दोनों सेम उसमें सेम जीएसटी की जुरिसडिक्शन में लाए करते हैं, तो आप अगर अपने जो जीएसटी कमिश्नर है उसको लिखेंगे तो वो दे कॉल बोथ द पार्टीज एंड ट्राई की, क्योंकि ये है तो जीएसटी एक्ट का वायलेशन कि इनपुट क्रेडिट ले लेना और पेमेंट ना करना. बट इसका अभी कोई प्रैक्टिकल रिपरकशन नहीं है रिगार्डिंग कि कोई इनकम टैक्स से कोई पेनल्टी लग जाए, कोई जीएसटी की लग जाए, ऐसा नहीं है. अभी पीछे जो है जो सारी सीए फर्म्स हैं, इनकी एसोसिएशन है, उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था इनकम टैक्स से लॉ पास हुआ है कि अगर आपको कोई एमएसएमई को पेमेंट नहीं करता यूनिट को, तो उसका जीएसटी रिवर्स होगा, साथ में उसकी जो जितना माल परचेज करेगा उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा उसको. ऐसा कोई रूल आया है क्या? सर ऐसा रूल कह रहे हो, जैसे हम जब हम एमएसएमई का केस डालते हैं तो इवन दे मेंशन अबाउट दिस कि दूसरी पार्टी का जीएसटी नंबर दे दो, और इन केस अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे अवार्ड आपके फेवर में आ जाएगा. इन दैट केस वो जीएसटी कैंसिलेशन या इन सब चीजों पे चले जाएंगे. बट वो पहले वो वहां तक हम उस स्टेज तक जाना जरूरी है बहुत इनिशियली. आप देख, ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपकी ऐसा बन जाएगा कि उनको रिवर्स करना पड़ेगा और ये सारी चीजें इमीडिएटली नहीं होंगी, बट इवेंचुअली हो जाएंगी जब कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा. तो बिना उसके ऐसा नहीं कि अभी ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है. मेरे को इन्फॉर्मेशन से अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे ऐसी मिली थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं सर. मेरे ख्याल कोई
पाइपलाइन में भी नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि हम तो थोड़ा अवेयर रहते हैं चीजों में, ऐसा कुछ अभी तो नहीं है कि उनको अगर उन्हें नहीं हो तो रिवर्स हो जाएगा, वैसा नहीं है सर, अभी तो नहीं है। अभी मैडम अभी कोई है क्वेश्चन और कुछ किसी का? मेंबर्स और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनमोल जी से, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंक्लूड द वेबिनार नाउ। है नहीं शायद क्वेश्चन किसी का, आप वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए, कंक्लूड कर लेते हैं। So let me conclude this event by thanking all of you. My special thanks to Anmol ji. I deeply appreciate the presentation made by you in the webinar. Thank you so much for sharing your valuable time, experience and expertise with us and engaging in such a fruitful, constructive and open exchanges of knowledge. Thank you so much, respected members, for your interest and attention in the webinar. We hope the best for you all and success in your future. Thank you once again, members. Members now can leave the meeting. Thank you Anmol ji. Thank you sir. Thank you. अगर आप इस वीडियो में अब तक जुड़े हुए हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी पेमेंट रिकवरी से जुड़े सारे कंसर्न्स और डाउट्स तो इसी से खत्म हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको पेमेंट रिकवरी के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स और ईमेल आईडी पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इससे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने और अपनी पेमेंट को रिकवर करने में मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पेमेंट फंसने की समस्या से जूझ रहे लोगों को मदद मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलूंगा आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।